अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना कानून साज असेंबली का इजलास आज मुनक़िद हुआ, जहां इजलास के आगाज़ के साथ ही असेंबली ने हुक्मरान जमात BRS के साबिक़ रुकन असेंबली जी सायना को खिराज अक़ीदत पेश किया, जिनकी हाल ही में मौत हो गई। ऐवान की कार्रवाई के आगाज़ के साथ ही चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ऐवान में एक ताज़ियती करारदाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सायना ने 4 दशकों तक सियासत में बतौर कानून साज और कई दीगर ओहदों पर काम किया था। उन्होंने याद दहानी करवाई कि सायना किसी भी सूरत हाल में मुस्कुराहट के साथ बहुत सब्र करते थे और सबके साथ अच्छा बर्ताव करते थे। सायना ने कंटोनमेंट इलाके को ग्रेटर हैदराबाद में जम करने के लिए अनथक मेहनत की। हाल ही में अच्छी खबर आई है कि मरकजी हुकूमत कंटोनमेंट को बल्दिया में जम करने के बारे में सोच रही है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सायना की ख्वाहिश पूरी हो। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सायना ने बतौर रुकन असेंबली अपने हल्के के अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद रहते थे। उनकी मुसलसल नुमाइंदगी पर ही हुकूमत ने कंटोनमेंट को GHMC में जम करने के लिए कई मरतबा असेंबली में करारदाद मंजूर करते हुए उसे मरकज़ को रवाना किया। इसी दौरान मरकजी हुकूमत ने भी कंटोनमेंट को शहरी इलाकों में जम करने का मनसूबा बनाया, जो हमारे लिए खुशी का बात है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के अलावा सभी अपोजिशन जमातों के अरकान असेंबली ने भी सायना को खिराज अक़ीदत पेश किया। శ్రీ జి సాయన్న గారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని 2 నిమిషాల పాటు మౌనం పాటిద్దాం. థ్యాంక్ యూ. అధ్యక్ష, స్వర్గీయ శాసన్న గారు 4 దశాబ్దాల పాటు రాజకీయాలలో శాసనసభ్యునిగా ఇతర అనేక హోదాలలో పనిచేసి ఉన్నారు. వారు వ్యక్తిగతంగా నాకు బాగా తెలిసిన వ్యక్తి అధ్యక్ష, తమరికి కూడా బాగా తెలిసినటువంటి వ్యక్తి. ఎటువంటి సందర్భంలో అయినా సరే చిరునవ్వుతో, చాలా పేషెన్స్తో అందరితో కలుపుకొని ఉండేటువంటి వ్యక్తి. ఆయన కంటోన్మెంట్ శాసనసభ్యుడు ఉండే టైంలో నేను సీఎం అయిన తర్వాత కూడా అనేక సందర్భాలలో ఏదన్నా ప్రయత్నం చేసి హైదరాబాద్లో కలిపితే బాగుంటుంది, మాకు అనేక ఇబ్బందుల్ని, నగర ప్రజలతో పాటు మాకు పౌర సదుపాయాలు అందడం లేదు, మా ప్రజలు బాధపడుతూ ఉన్నారు, ఒక బిగ్గర్ సెక్షన్ కాలనీ కట్టాలన్నా మరొకటి కట్టాలన్నా ఆర్మీ నిబంధనలు చాలా కఠినంగా ఉన్నాయని చెప్పి ఆ కంటోన్మెంట్ ప్రజల కోసం చాలా తపన పడి చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచనతో అనేక రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చేవారు అధ్యక్ష. అనేక సందర్భాల్లో చెప్పిన తర్వాత నేను మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి గారికి చెప్పి తీర్మానాలు చేసి పంపించినాం. ఇటీవల కాలంలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఆలోచన చేసి కంటోన్మెంట్స్ను కలపాలి, నగరపాలికలలో ఒక నిర్ణయానికి వస్తున్నట్టుగా శుభవార్త అందింది. ఆ రకంగానే కానీ సాయన్న గారి కోరిక నెరవేరాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. సాయన్న గారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో పుట్టినప్పటికీ అధ్యక్ష హైదరాబాద్ చేరుకొని ఇక్కడే సెటిల్ అయ్యి చిన్నపాటి వ్యాపారవేత్తగా ఉండి చాలా చక్కటి, అంటే నాన్ కాంట్రవర్షియల్ రాజకీయ నాయకులలో సాయన్న గారు ఒకరు. సాయన్న గారి కూతురు లాశానందిత అని చెప్పి ఆ అమ్మాయి కూడా 2 పర్యాయాలు నగరంలో కార్పొరేటర్గా ప్రజలకు సేవలు కూడా అందించడం జరిగింది. సాయన్న గారి కుటుంబం మా కుటుంబం అధ్యక్ష. తప్పకుండా అన్ని విధాలుగా ఆ కుటుంబాన్ని
కాపాడుకుంటాం. ఏదన్నా కానీ వాళ్ళ లోటు తీర్చలేనటువంటిది తమరి ఆదేశం మేరకు తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెడతా ఉన్న అధ్యక్ష. సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ శాసనసభ్యులు శ్రీ జి సాయన్న గారు మృదు స్వభావి వివాదరహితుడు. जनाब स्पीकर साहब, इस ऐवान के एक अहम और सीनियर रुकन जनाब सैना साहब के इंतकाल पर ये ताज़ियती करारदाद चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में पेश की। यकीनन एक मिलनसार हर्जिल अजीज़ शख्सियत थी और जिस हल्के में वह मुंतखब होते थे वहाँ के लोगों को दिलों में अपना मुकाम पैदा कर चुके थे। बहुत ही प्यार मोहब्बत से लोगों से कंधा पेशानी से पेश आते थे और खामोश तबीयत के ज़्यादा कुछ लोगों में नुमायाँ होना उनकी फितरत नहीं थी। बहरहाल एक तवील अरसे तक वो अपनी खिदमत रियासत के अवाम के लिए अपनी खिदमत पेश करते रहे और उनकी खिदमत को कोई फरामोश नहीं कर सकता। मैं उनके ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी करता हूँ। शुक्रिया। గౌరవనీయులు గడ్డం సాయన్న గారు కంటోన్మెంట్ శాసనసభ్యునిగా మొట్టమొదటిసారిగా 1994లో గెలిచిన నాటి నుంచి 1999 ఎన్నికల్లో మినహా దాదాపు 5 సార్లు కంటిన్యూస్గా ఆ నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించినారంటేనే ప్రజల మనసుల్లో వారికి ఉన్నటువంటి స్థానాన్ని మనందరం కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. కంటోన్మెంట్ లాంటి ఒక టిపికల్ ఏరియా, ఎక్కువ శాతం ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్నటువంటి ఏరియా, చాలా రకాలైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అనునిత్యం ప్రజల మధ్యలో ఉండి సౌమ్యుడిగా, మృదు స్వభావిగా తనకిచ్చినటువంటి బాధ్యతలను అటు పార్టీ పరంగా కానీ ఇటు ప్రభుత్వ పరంగా కానీ తనకు వచ్చినటువంటి బాధ్యతలన్నింటినీ కూడా సునిశ్చితంగా పరిశీలించి తాను నవ్వక ఇతరులను నొప్పించక తన మృదు స్వభావంతో ప్రజల మనసులను గెలిచి 5 సార్లు శాసనసభ్యునిగా ఎన్నికైనటువంటి పెద్దలు గడ్డం సాయన్న మృతి పట్ల భారతీయ జనతా పార్టీ శాసనసభ పక్షం తరఫున సంతాపాన్ని తెలియజేస్తూ వారి కుటుంబ సభ్యులకి ప్రగాఢ సానుభూతిని మా పార్టీ తరఫున తెలియజేస్తాను. అధ్యక్ష, ధన్యవాదాలు. గౌరవ శాసనసభ్యులుగా మనందరితో పాటు ఈ శాసనసభలో పనిచేసినటువంటి పెద్దలు సాయన్న గారి మృతి మనందరికి కూడా తీవ్రమైనటువంటి దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. అధ్యక్ష, సాయన్న గారు ప్రజా జీవితంలో పేదల పక్షపాతిగా నిరాడంబరంగా ఎటువంటి భేషాలు పోకుండా శాసనసభ్యుడిగా 5 సార్లు వారు పనిచేసినటువంటి విధానం గుర్తు తెచ్చుకుంటే తప్పనిసరిగా చాలామంది ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకోవాలంత విధంగా పనిచేసినటువంటి రోజులు గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి. అధ్యక్ష, వారు శాసనసభ కమిటీ చైర్మన్గా కానీ టిటిడి సభ్యులుగా కానీ వారు తీసుకున్నటువంటి ప్రతి బాధ్యతలు కూడా అంకిత భావంతో పనిచేసి ప్రజా జీవితంలో ఒక ప్రజాప్రతినిధి ఏ రకంగా ఉండాలో కూడా చూపించినటువంటి విధానం మనందరికీ ఆదర్శం. అధ్యక్ష, అటువంటి సాయన్న గారి మరణం చాలా బాధకు గురి చేయటమే కాకుండా వారు ఏ పేద ప్రజల కోసం అయితే నిరంతరం ఆలోచన చేసి పనిచేస్తూ ఉండేవారు అటువంటి ఆలోచనలన్నింటినీ కూడా ఈ సభ ముందుకు తీసుకొని పోవాలని చెప్పి మీ ద్వారా అందరినీ కోరుకుంటూ వారి ఆత్మకి శాంతి చేకూరాలని వారి కుటుంబ సభ్యులకి నా ప్రగాఢమైనటువంటి సానుభూతిని. तेलंगाना कानून साज असेंबली का इजलास 3 दिन तक जारी रहेगा। असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएससी के इजलास में ये फैसला लिया गया। आज असेंबली के मानसून सेशन के आगाज के मौके पर सिकंदराबाद के कंटोनमेंट असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस के रुकन असेंबली जी सायना को खिराज अकीदत पेश किया गया था। बाद असेंबली इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास के अख्तिताम के बाद स्पीकर कानून साज असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के चैम्बर में बीएससी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें स्पीकर असेंबली के अलावा हुकूमत की तरफ से रियासत वज़रा हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने शिरकत की। इस इजलास के दौरान अपोजिशन कायदीन ने असेंबली इजलास को ज़्यादा से ज़्यादा दिन मुनक्किद करते हुए अवामी मसाइल पर बहस की इजाज़त देने हुकूमत को तजवीज़ पेश की। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कम से कम 20 दिन असेंबली इजलास मुनक्किद करने का मशवरा दिया और कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना वो वाहिद असेंबली है जहां कम से कम दिन असेंबली इजलास मुनक्किद होते हैं।
जिसका जवाब देते हुए हरीश राव ने कहा कि कितने दिन असेंबली इजलास मुनक्किद होगा ये अहम नहीं है, कितने घंटे इजलास मुनक्किद हुआ और कितने अवामी मसाइल पर मबाहिस हुए ये अहम होता है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव तेलंगाना असेंबली के मानसून सेशन के पहले दिन अपने चैम्बर में वुज़रा, पार्टी के सीनियर कायदीन, अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल के साथ इजलास में मसरूफ देखे गए। वुज़रा और अरकान असेंबली किसानों के कर्जों की माफ़ी के ऐलान पर मुबारकबाद देने के लिए चीफ मिनिस्टर के चैम्बर में कतार लगाए हुए ठहरे हुए थे। वुज़रा के साथ मुतल्लिका जिले के अरकान असेंबली भी थे जिन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। असेंबली में ग्रुप की शक्ल में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के लिए जाने के दौरान वो काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। उमूमन चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी उनके चैम्बर के करीब आसानी से जाने से सियासी कायदीन और अरकान असेंबली को रोकती है, ताहम आज तमाम अरकान असेंबली को आसानी के साथ चीफ मिनिस्टर के चैम्बर में दाखिल होने और उनसे मुलाकात करने की इजाज़त दी गई। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर का गुलदस्ता पेश करते हुए इस्तकबाल किया। वज़ीर उमूर मुक़न्नना वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हालिया दिनों रियासत में जो बारिश हुई है वो रियासत की तारीख में कभी देखने में नहीं आई। रिकॉर्ड सतह की बारिश के बावजूद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दूरअंदेशी और मुसलसिल चौकसी के बायस भारी नुकसान को टाला गया। आज तेलंगाना कानून साज काउंसिल में शदीद बारिश और सैलाब से हुए नुकसान पर मुख्तसर मबाहिस हुए। इन मबाहिस का जवाब देते हुए वज़ीर उमूर मुक़न्नना प्रशांत रेड्डी ने कहा कि 18 जुलाई से 22 जुलाई तक और 24 जुलाई से 28 जुलाई तक 2 मरतबा सिर्फ एक ही रोज़ 6 घंटों तक बारिश हुई। इस आफत को कोई भी रोक नहीं सकता था क्योंकि यह कुदरती होता है। अलबत्ता इससे होने वाले नुकसान को बचाने की क़ब्ल अज़ वक्त कोशिश की जा सकती है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती इक़दाम करते हुए जानी और माली नुकसान को बचाने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की। అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లో నర్సిరెడ్డి గారు అన్నారు, జీవన్ రెడ్డి గారు కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తాను కానీ నేను అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా అధ్యక్ష డెఫినెట్గా కొన్ని దగ్గరలో భూమి కోతకు గురైన అధ్యక్ష నేనే స్వయంగా చూశాను. కొన్ని దగ్గర ఇసుక మేటలు పట్టిన అధ్యక్ష ఆ కోతకు గురైనవి ఇసుక మేటలు పట్టిన దగ్గర డెఫినెట్గా పంటలు దెబ్బతిన్నాయి అధ్యక్ష. అయితే ఇంకా ఈ వాటర్ లాగ్డ్ ఏరియాలో ఇంకా వాటర్ లాగ్డ్ అయినటువంటి క్షేత్రం ఏమైతే ఉంటుందో పంటలు దెబ్బతిన్నాయా లేదా అని చెప్పి ఇంకా ఫీల్డ్లో పని నడుస్తున్నది అధ్యక్ష. తిరుగుతూ ఉన్నారు, సమాచారం వస్తుంది మాకు. సమాచారం వచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు తగు నిర్ణయం తీసుకుంటారు అధ్యక్ష, దాంట్లో ఎలాంటి డౌట్ లేదు. ఆల్రెడీ మొన్న క్యాబినెట్లో చెప్పినారు ఈ కోతకు గురైన ఏరియాలని సర్వే చేపియండి అని చెప్పి. రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా వరంగల్ పాత జిల్లా, అదేవిధంగా కొన్ని చోట్ల అత్యధికంగా ఫ్లాష్ గా పడ్డటువంటి వర్షాలు, వీటి మీద చర్చ ఇప్పటిదాకా చూస్తాం. అయితే ఇందులో అనేకమైనటువంటి నెగిటివ్ అంశాలు ఉన్నప్పటికీ అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక అంశాన్ని చాలా పాజిటివ్ గా తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. దీంట్లో ప్రత్యేకించి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వారిని మనం అభినందించాలి. ఎక్కడెక్కడైతే జిల్లాలో ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా వర్షపాతం సరిగ్గా పడలేదు, ఎందుకంటే కరెక్ట్ 8 రోజుల కింద మనకు రంగులు ఉండే వాన పడుతుందా పడదా అసలు వేసుకోవచ్చా ఏరాదా పట్టాలన్న పరిస్థితి ఉండే. సో ఈ పడ్డటువంటి ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 23,328 ట్యాంక్స్ ని నింపుకోవడానికి ఎక్కడైతే డెఫిసిట్ ఉందో, అటనే ఒక 42 రిజర్వాయర్స్ ఎక్కడైతే డెఫిసిట్ ఉందో వాటిలో కూడా ఈ వాటర్ ని మనం టర్న్ చేసుకొని నింపుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా మా గౌరవ మంత్రివర్యులు నేను నిజామాబాద్ సంబంధించి మాట్లాడుతున్నటువంటి ప్రతి సందర్భంలో కూడా అనుకున్నాం అధ్యక్ష. साबिक वजीर व बीजेपी रुकन असेंबली इटला राजेंद्र ने कहा कि बीएससी के इजलास में बीजेपी को मदऊ न करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए याद दहानी करवाई कि चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना हुकूमत को खुद पर यकीन नहीं है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि 3 रुकनी बीजेपी को इस इजलास में मदऊ नहीं किया गया। माजी में तेलंगाना कानून साज असेंबली के अहाते में तमाम जमातों के कमरे हुआ करते थे। मौजूदा तौर पर बीजेपी मुक़र्ररा पार्टी के लिए कोई दफ्तर नहीं है, जो शर्मनाक बात है। उन्होंने स्पीकर से आज सुबह मुलाकात की, ताहम इस मसले पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ప్రభుత్వాలకుండే కానీ సమైక్య పాలకులకున్న సోయి, సమైక్య పాలకులకున్నటువంటి బ్రాడ్నెస్, ప్రజాస్వామ్య మర్యాదల్ని కాపాడంలో వాళ్లకున్న సాంప్రదాయాన్ని కూడా ఇలా తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి కేసీఆర్ గారు లేదని చెప్పి అర్థమవడానికి ఇవాళ సజీవ సాక్ష్యం ఇవాళ బీఎస్సీలో భారతీయ జనతా పార్టీ లేకపోవడం. నేను అడుగుతున్న 3 శాసనసభ్యులం ఉన్నాం, అయినా మాకు ఎంట్రీ లేదు. ఈ అసెంబ్లీలో 119 మంది శాసనసభ్యులు ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఇంత పెద్ద అకామిడేషన్ ఇంత పెద్ద ఎత్తున రూములు ఉన్నప్పటికీ కూడా
భారతీయ జనతా పార్టీ శాసనసభ్యులకు ఇవాళ ఒక రూమ్ కూడా కేటాయించకుండా అవమానించడం అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది కక్ష సాధింపుకి कांग्रेस के सीनियर कायद जीवन रेड्डी ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को उस वक्त किसानों के कर्जों की माफी की याद आई जब असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया पॉइंट पर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि 36,000 रुपए से कम कर्ज वाले किसानों के ही कर्जों की माफी की गई। इस बात का ऐलान गुज़िश्ता इंतखाबात में किया गया था। किसानों के कर्जों की माफी एक साथ में की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के कर्जों की माफी में ताखीर के बाद सूद को भी इसमें शामिल किया गया है। हुकूमत जो रकम कर्जों की माफी के लिए दे रही है वो सूद की अदायगी के लिए ही काफी है। इस तरह किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। రుణమాఫీ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి పేర్కొన్నప్పటికీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఇంతవరకు కేవలం 36,000 రూపాయల వరకు బకాయి పడ్డ రైతాంగాన్ని మాత్రమే మాఫీ చేయడం జరిగింది. 36,000 పైబడ్డ రైతాంగానికి ఇంతవరకు రుణమాఫీ చేయబడకపోవడంతో ఏదైతుందో ఏ రైతే గాని సాధారణంగా బ్యాంకుకు కొత్త అప్పు పోతుంటే ముందు పాత అప్పు కడితేనే కానీ కొత్త అప్పు ఇవ్వడు. పాత అప్పు కట్టాలంటే ప్రైవేట్ వడ్డీ వ్యాపారస్తుని ఆశ్రయించి వీళ్ళ ప్రైవేట్ రంగంలో రెంట్ లెక్క అంటే వీళ్ళ 24% వడ్డీతో ఏదైతుందో అప్పు తీసుకొచ్చి ఈ అప్పు తీరిస్తేనే కానీ మళ్ళీ కొత్త అప్పు పొందేట అవకాశం లేకుండా పోయింది. దాంతో ఏమైపోయింది వీళ్ళ ఎంత तेलंगाना असेंबली के बाहर आज वजीर तारक रामाराव और कांग्रेस के रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी के दरमियान दिलचस्प तबादला ख्याल हुआ। जग्गा रेड्डी को टी शर्ट में देखते हुए केटीआर ने उनसे पूछा कि आया वो अपने बचपन के दिनों में वापस हो रहे हैं, जिस पर जग्गा रेड्डी ने इसका जवाब देते हुए पूछा कि अगर आप टी शर्ट नहीं पहने तो आप भी बच्चे बन जाएंगे। टीएनजीयूसी के रियासती सदर एम राजेंद्र जग्गा रेड्डी के साथ थे। केटीआर ने पूछा कि आप दोनों का दोस्ताना कब से है, जिस पर राजेंद्र ने जवाब दिया कि हमारे पास एक गिलास एक बिस्तर था तब से। ताहम जब वजीर मौसूफ ने पूछा कि क्या जग्गा रेड्डी इंतखाबात में कामयाब होंगे तो राजेंद्र ने मिजाहिया अंदाज में जवाब दिया कि जग्गा रेड्डी संगा रेड्डी से कामयाब होंगे। बेरोजगारों के मसाइल हल करने और बेरोजगारों को अलाउंस जारी करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने असेंबली के मुहासरे की कोशिश की। इस एहतजाज से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए उन एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी और सिटी सदर के रोहित के बशमूल दीगर कारकुनों ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की और इल्जाम लगाया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने बेरोजगारों को धोखा दिया है। ప్రకటించాలి 1,62,000 ఒక్కొక్క విద్యార్థి ఇంకా ఇవ్వాల్సింది ఇంకా ఎప్పుడు ఇస్తావు కేసీఆర్ అంటూ కూడా నిరుద్యోగ వృత్తిని ప్రకటించాలంటే యూత్ కాంగ్రెస్ कांग्रेस पार्टी ने बचुपल्ली इलाके में 8 साल बच्ची के साथ पेश आए अलमनाक सड़क हादसे के लिए जीएचएमसी और बीआरएस हुकूमत की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। जुमेरात को गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए टीपीसीसी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन, हैदराबाद डीसीसी के सदर समीर वलीउल्लाह, लिंगोजीगुड़ा डिवीजन के कॉरपोरेटर दुरपल्ली राजशेखर रेड्डी और दीगर ने इल्जाम लगाया कि हैदराबाद की सड़कें इस्तेमाल करने वालों के लिए मौत का जाल बन चुकी हैं। उनका कहना था कि बीआरएस हुकूमत हालिया बारिशों के बाद उनकी हालत को बेहतर बनाने के लिए कोई इक़दामात नहीं कर रही है। ये पिछले 10-15 दिनों की खाली ये बारिश की वजह से आज हमारे हैदराबाद के पूरे तकरीबन एक मीडिया रिपोर्ट के तहत जो है 3,500 पैथोल जो है ये हैदराबाद लिमिट्स के अंदर तकरीबन आए। लेकिन बीआरएस हुकूमत और जो है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये बात को डिनाई करती है कि बोलते हैं कि ये रिपोर्ट हमारे हैदराबाद की होती ही नहीं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल एक मासूम बच्ची
8 साल की बच्ची अपने वालिद मोहतरम के साथ बाइक पे ट्रैवल कर रही थी, स्कूल को जा रही थी। गड्ढे की वजह से वो नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद वो मासूम बच्ची भी नीचे गिरी और उनके वालिद मोहतरम भी नीचे गिरे। उनको शोल्डर को मार लगा, लेकिन वो मासूम बच्ची की जान चली गई। उसके ऊपर से एक स्कूल बस जो है ना ट्रैवल कर गई। इतनी बदतरीन हालात हमारे रोड के कंडीशन की है और उस कंडीशन की वजह से एक मासूम बच्ची की जान चली गई। ये एक ही नहीं, ये तेलंगाना के अंदर पिछले 8-10 दिनों के अंदर हम देख रहे हो तकरीबन 300 लोगों की जान गई। हैदराबाद के अंदर 2500 रोड्स है हमारे पास, उस रोड के अंदर जो है ना तकरीबन 2000 लोग जो है ना इंजूर गए। कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तियार में जब बारिश के दिन आते थे तो बारिश से पहले उसकी एक प्री प्लान एक टीम होती थी, एक टीम तैयार करते थे। वो टीम ये काम करती थी कि आने वाले दिनों में हम किस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर लेना, कैसा हम आने वाले वक्त को जो बारिश दबा के ज्यादा बारिश हो गई तो उस बारिश को हम जब रोड्स खराब होंगे या फिर जो है बारिश का पानी स्टैग्नेट हो जाएगा, ऐसी चीज को हम कैसा करना, ये तमाम चीजों के बारे में ये कांग्रेस पार्टी का दौरे इख्तियार में आप पिछले देखे। लेकिन ये बीआरएस पार्टी के अंदर ये नहीं हो रहा। बीआरएस पार्टी में रोड बन रही, कॉन्ट्रैक्टर को दे रही और क्वालिटी कंट्रोल आके बाज़ाब्ता साइन कर रहा है कि रोड अच्छी है बोल के। लेकिन 1 घंटे की बारिश के अंदर वो तबाह ताराज हो जा रही, जिसकी वजह से आज हर हैदराबाद के हर कोने के अंदर हर रोड के ऊपर गड्ढे हो जा रहे हैं। ये सिर्फ कमीशन के लिए हो रहा है। ये बीआरएस हुकूमत, ये ग्रेट हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने लीडर्स है बीआरएस पार्टी के तेलंगाना हाईकोर्ट ने पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को हिदायत दी कि वो 17 अगस्त तक नतायज जारी ना करे। अदालत ने हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। पुलिस ने मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा था कि पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने प्रिलिमिनरी इम्तिहान के बाद जियो 57 और 58 जारी किया। उम्मीदवारों के वकील ने तफसीलात पेश करते हुए कहा कि बोर्ड ने पुलिस में मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहीं भी जियो नंबर 57 और 58 का जिक्र नहीं था। प्रीलिम्स इम्तिहान की तकमील के बाद बोर्ड ने ऐलान किया कि तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक निशानात को कम किया जाएगा। बोर्ड ने SC, ST और BC के लिए कट ऑफ मार्क्स का फैसला किया। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से कहा कि बोर्ड के नोटिफिकेशन में तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कट ऑफ मार्क्स का कोई इंकशाफ नहीं किया गया था। बोर्ड ने माशी तौर पर पसमानदा तबकात के तहत तहफ़्फ़ुज़ात को भी मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से कहा कि प्रीलिम्स लिखने वाले तमाम उम्मीदवारों को शदीद नुकसान का सामना हो सकता है। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के फैसलों के खिलाफ ताहाल 52 दरखास्तें दायर की गई हैं। अदालत ने इस मामले की समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी। रियासती हाई कोर्ट ने मजालिस मकामी इदारों की मखलूआ नशिस्तों पर इंतखाबात करवाने से मुतालिक दाखिल होने वाली मफाद अम्मा की दरख्वास्त की समाअत को 3 हफ्तों तक मुलतवी करने हुकूमत की ख्वाहिश को कबूल करते हुए इस केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता समाअत के दौरान अदालत ने हुकूमत से इस बात की वजाहत करने की हिदायत दी थी कि मखलूआ सीटों पर कब तक इंतखाबात करवाए जाएंगे। एडवोकेट R भास्कर की जानिब से दाखिल करदा मफाद अम्मा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस विनोद कुमार की बेंच ने आज समाअत की। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने अदालत से कहा कि रियासत में 220 सरपंच, 94 MPTCs, 4 ZPTCs, 5364 वार्ड मेंबर्स और 344 डिप्टी सरपंच की सीटों पर इंतखाबात करवाने से मुतालिक हुकूमत को मुनासिब फैसला लेने के लिए 3 हफ्तों की मोहलत चाहिए। इसीलिए इस केस की समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी की जाए। उनकी दरख्वास्त को बेंच ने कबूल कर लिया। तेलंगाना में हालिया बारिश से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए मरकज की टीम ने मुल्क जिले के एजेंसी इलाकों का दौरा किया। गोविंदरावपेट मंडल की कौमी शाहराह का मुआयना किया। उन्होंने सैलाब मुतासिरीन से बात की। मकामी अफराद ने मरकजी टीम को वाज़ेह किया कि गैर मामूली सैलाब की वजह से पुल को अबूर करते हुए 8 अफराद की मौत हो गई। उन्होंने नए मकानात की तामीर की ख्वाहिश की। साथ ही उन्होंने जमपना नदी के गाँव के सिर्फ डैम बनाने की भी ख्वाहिश की। उन्होंने वादा किया कि मरकजी हुकूमत को रिपोर्ट करेंगे और इस काम को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि एक बार फिर ये साबित हो गया है कि BRS का मतलब भारत रैतू समिति है। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस सिलसिले में एक ट्वीट करते हुए कहा कि ये वाज़ेह हो गया है कि जय किसान उनके लिए सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि उनकी हुकूमत की पॉलिसी है। भले ही मरकज़ की हुकूमत किसानों को नज़रअंदाज करते रहे
और मरकज़ के नामुनासिब फैसलों की वजह से रियासती हुकूमत की आमदनी में कमी हुई है और बीजेपी हुकूमत ने हर कदम पर माली मुश्किलात पैदा की हैं, लेकिन रियासती हुकूमत की तरफ से किसानों के कर्ज की माफ़ी को मुकम्मल तौर पर मुकम्मल करने का अहम फैसला किया गया, जिसका इंकशाफ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने क़ुव्वत इरादी के सबूत के तौर पर किया। उन्होंने कहा कि किसानों की फलाह बहबूद में तेलंगाना के 9 साल मुल्क की तारीख का सुनहरी बाब है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ज़राअत का मतलब खुशी है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि आज़ा की पेवंदकारी की सहूलत गरीबों को मुफ्त में फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम में आज़ा के अतिया के सिलसिले में बेदारी पैदा करनी चाहिए। वज़ीर मौसूफ आज सुबह हैदराबाद में मुनक्किदा 13वें ऑर्गन डोनर प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। हरीश राव ने कहा कि गरीबों को आज़ा की पेवंदकारी की सहूलत दस्तियाब करवाने के लिए गांधी हॉस्पिटल में 40 करोड़ रुपए की खुसूसी लागत से ऑर्गन ट्रांसप्लांट ब्लॉक कायम किया जा रहा है और ये ब्लॉक जल्द ही दस्तियाब कराया जाएगा। उन्होंने बीपी और डायबिटीज जैसे बीमारियों को कंट्रोल में रखने और तंबाकू से दूर रहने के लिए शऊर की बेदारी की जरूरत को उजागर किया। బ్రెయిన్ డే డిక్లరేషన్ చేసి అవయవ దానం చేయడంలో కూడా తెలంగాణ అగ్రభాగాన్ని నిలిచింది. ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ లో ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే జనరల్ గా ఒకప్పుడు ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటే లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్, హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటే అమెరికాకు వెళ్ళాలి, యూరప్ వెళ్ళాలి, లండన్ వెళ్ళాలి. ఇది ధనికులకు మాత్రమే సాధ్యం, డబ్బులున్న వాళ్ళకి మాత్రమే సాధ్యం అనేది ఒకప్పుడు పరిస్థితి. కానీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి కృషితో साबिक वज़ीर जूपल कृष्णा राव ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। उन्होंने कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। कृष्णा राव ने जुमेरात की सुबह नई दिल्ली में AICC के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। तमाम का ख्याल था कि कोल्हापुर में होने वाले जलसे आम में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मौसम की खराबी की वजह से कोल्हापुर के जलसे को मुलतवी किया था। खड़गे ने जूपल्ली कृष्णा राव और दीगर कायदीन को पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। कोडंगल के साबिक MLA गुरुनाथ रेड्डी जो कृष्णा राव के साथ पार्टी में शामिल हुए थे, उन्हें भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस का खंडवा पहनाया। इस मौके पर पार्टी के रियासती उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, PCC के सरबराह रेवंत रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, वेणुगोपाल रेड्डी, मल्लू रवि और दूसरे मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर बंडी संजय ने अरकान खानदान के साथ मुलाकात की। दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान बंडी संजय ने अपने अरकान खानदान का तारुफ करवाया। बंडी संजय की बीवी और उनके 2 लड़कों ने मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने दोनों लड़कों से कुछ देर तक बातचीत भी की। तेलंगाना के करीमनगर शहर में वक्फ बोर्ड के एक जिम्मेदार अहदेदार की गैर अखलाकी और मुजरिमाना हरकत जिले भर में मौजूए बहस बनी हुई है। बताया जाता है कि करीमनगर वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर नजम ने शहर के मोहल्ले सवारन की मस्जिद में चाशमे की रात देर गए मुखफिल मस्जिद में गेट से फलंग कर अंदर दाखिल हुए। उनके हमरा एक और शख्स भी मस्जिद में इसी तरह से दाखिल हुआ और कुछ देर बाद वो दोनों मस्जिद की गेट फलांग कर बाहर आ गए। इस दौरान मकामी अफराद ने वक्फ इंस्पेक्टर की इस मुजरिमाना हरकत की वीडियो निकाल ली और उनसे दरियाफ्त किया कि मुखफिल मस्जिद में फलांग लगाकर अंदर दाखिल होने की क्यों जरूरत पड़ी। मस्जिद के मौज़िन को तलब करते हुए गेट खोलकर अंदर दाखिल हो सकते थे, जिस पर वक्फ इंस्पेक्टर नजम ने बताया कि मस्जिद में बरकी मुलाकातें होने की तस्वीर लेने के लिए वो अंदर दाखिल हुए थे। जिले चित्तूर में 10वीं जमात की तालिबा की असमत दरी के बाद उसका कत्ल कर दिया गया। जिले के सोमपुरम में ये वारदात पेश आई। इस बात की इतला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी, जो मफरूर बताया जाता है। अजमेर कॉलोनी में कल रात देर गए सीमेंट के लोड से लदी लॉरी की टक्कर से ट्रांसफार्मर गिर गया। मुकामी अफराद ने कहा कि अलमास होटल के करीब ब्रिज का काम जारी था। यह वाकया पेश आया, जिससे बिजली की सप्लाई में रुकावट पैदा हो गई। इस वाक़े पर मकामी अफराद ने बरहमी का इजहार किया। ताहम बादशाह इतला पर महकमे बिजली के ओहदेदार वहां पहुंचे और मरम्मत का काम शुरू कर दिया। मकामी अफराद ने बताया कि गाड़ी पीछे लेने के दौरान ये वाकया पेश आया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इतला नहीं है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।